Alright, let's start with the next type, which says extraction of the metals at the medium reactivity. जो middle में है, जो बीच में है elements reactivity series के, अब हम बात कर रहे हैं उन metals के बारे में कि उनको कैसे हम extract कर सकते हैं. What is the process with which we can extract these metals which are at the middle reactivity? Middle reactivity पे elements हमारे पास कौन-कौन से? Like zinc we have, lead we have, copper we have. These are the moderately reactive elements, or iron we can have. Now these metals, these are usually present as sulfides or carbonates in the nature. ये ऐसे elements हैं जो ज़्यादातर हमारे को सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं नेचर में. These sulfide और carbonates are first converted into oxides. पहला प्रोसेस यही कहता है कि मुझे कार्बोनेट या सल्फाइड को हमने चेंज करना है ऑक्साइड के अंदर, कि अब ये हमारे पास सल्फाइड में या कार्बोनेट की फॉर्म में तो है, लेकिन जैसे हमने पहले किया था, अगेन वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड फॉर्म, because it becomes very easy to extract the metals from oxides. Oxides में से उनका metal extract करना बहुत easy हो जाता है कि heating करके हम oxygen को remove out कर सकते हैं. Now these sulfides, अब इसमें दो नई definitions आ रही हैं. One says roasting, R-O-A-S-T-I-N-G, roasting. Another is calcination, C-A-L-C-I-N-A-T-I-O-N. Now we need to understand what are these two different terms. इसके ऊपर question भी बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में. This is our one marker difference question. Differentiate between calcination and roasting. Now we need to understand what is roasting. Roasting क्या होती है? We say roasting is basically heating up of a metal in the presence of oxygen. किसी भी metal का process generally उसको heat करने का process in the presence of oxygen, that is called roasting. अब हम roasting सबके साथ नहीं करते. We only do the roasting for the sulfide ores. जो ores sulfide की फॉर्म में है उनको हम रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट्स वालों को नहीं करेंगे. We only roast the elements which are in the sulfide form. जो सल्फाइड की फॉर्म में अवेलेबल हैं और जो सल्फाइड की फॉर्म में उसको हम रोस्टिंग कर रहे हैं. इसकी एक वो भी लिख लो, एक एग्जांपल भी लिख लो. जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड ZnS, जब मैं इसको रोस्ट करता हूँ, दैट मीन्स ZnS प्लस O2, एरो बना के उसके ऊपर लिख देंगे रोस्टिंग. ZnS plus O2 on roasting gives ZnO plus SO2. तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है. नेक्स्ट आता है टेक्निक कैल्सिनेशन. ये तो रोस्टिंग हो गया, जो हमने कहा कि हमने मेटल को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज रोस्टिंग. द नेक्स्ट प्रोसेस इज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन वी डू इट Calcination, we are doing it with the element of basically carbonates. जो carbonate sources हैं उनके साथ हम calcination करते हैं. We don't do the calcination with this particular thing, that is your roasting. जैसे हमने सल्फाइड के साथ की थी, सल्फाइड के साथ हम रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं हम कार्बोनेट ओर के साथ. तो कार्बोनेट ओर के साथ जो प्रोसेस चल रहा है दैट इज कैल्सिनेशन. अब इसमें क्या है, इट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. वहां प्रेजेंस ऑफ एयर था, यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर है, तो ये डिफरेंस है. What is the calcination and what is the roasting? So we say roasting is basically in the presence of air to convert it into oxide. Calcination is basically in the absence of air to make it into the oxide, and both are different. Roasting is done with a sulfide ore, calcination is done with a carbonate ore. Calcination carbonate ore के साथ होती है. So these are the two particular things which we are going to use for the metals which are in the basis category of mediocre part, that is the medium reactivity, like लेड, कॉपर, आयरन, जिंक एक्सेट्रा. जो मीडियम रेंज में है उनको जब हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो हम ये दो प्रोसेसेस को यूज करते हैं, बाय रोस्टिंग एंड बाय कैल्सिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर. ये जो ऑक्साइड ओर है उसको रिड्यूस करना. सो वी से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. जो मेटल ऑक्साइड बन गया, अब देखो मैंने चाहे रोस्टिंग करी चाहे मैंने कैल्सिनेशन करी, डिपेंडिंग ऑन द ओर, कि मेरे पास सल्फाइड का ओर था तो मैंने उसको हीट कर लिया प्रेजेंस ऑफ एयर में, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. अगर मेरे पास कार्बोनेट का ओर था तो मैंने उसको कैल्साइन कर दिया, कैल्सिनेशन कर दी, वापस उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. अब ऑक्साइड में तो आ गया. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ऑक्साइड में से मेरे को मेटल निकालना. उस टेक्निक को भी कॉल इट एज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, कि जब हम रिड्यूस कर रहे हैं मेटल को, निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड ओर. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, जो मेटल ऑक्साइड का ओर है उसमें से मेटल को निकालना इज कॉल्ड द रिडक्शन. इट कैन बी डन बाय हीटिंग द ऑक्साइड. सिंपली ऑक्साइड को हीट करके हम निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन हमने लिया ZnO, जिंक ऑक्साइड को जब मैंने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन. अब हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करते हैं. कार्बन इज जनरली यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेजरली हम कार्बन को यूज करते हैं. तो कार्बन के साथ हमने हीट करा Zn ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को,
और इसने क्या किया, इसने जिंक मेटल मुझे सेपरेट करके दे दिया, प्लस साथ में क्या दिया इसने हमारे को, इट हैज गिवन अस द जिंक मेटल, अलोंग विद दैट इट हैज गिवन अस द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, with this we have done the reduction of the metal also।